बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़रा इस्माइल है। मेरा ताल्लुक़ HRH आगा खान गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज PIB कॉलोनी से है। मैं इकनॉमिक्स की लेक्चरार हूँ। आज हम आपको पहला चैप्टर इकनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स इज़ अ डायनामिक सब्जेक्ट. Economics is a growing and developing science. As the year pass, new ideas are discovered, and the old theories are being revised rapidly. The subject matter of economics, or the proper definition of economics, is still controversial. For the sake of convenience, the various definitions given by famous economists are grouped together under four heads. Economics as a science of wealth by Adam Smith. Economics as a science of material welfare by Marshall. Economics as a science of scarcity and choice by Robbins. और मॉडर्न डेफिनेशन में बयान किया गया है इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी. आज हम बात करेंगे मुआशियात दौलत का इल्म है, जो एडम स्मिथ ने बयान करी है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ. Adam Smith is termed as the father of modern economics. He was the man behind all the basic laws of modern economics. He laid the foundation of classic economics, followed by the most sophisticated and realistic theories of economics and its effect on the world's politics. मुआशियात दौलत का इल्म है. प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो कि मुआशियात के बानी कहलाते हैं, उन्होंने ये तारीफ पेश की है. Definition of economics by Adam Smith. Adam Smith proposed the definition of economics as study of wealth in his famous book The Wealth of Nations. The Scottish economist said that economics is a science of wealth that studies the process of production, consumption and accumulation of wealth. मुआशियात दौलत का इल्म है, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बयान की है. उनके ख्याल में ये मुआशियात दौलत का इल्म है. इट डील्स विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Economics as a science of wealth. The main points of definition of economics given by the above classical economists are that economics is the study of wealth only. It deals with consumption, production, exchange and distribution of wealth. Number 2, only those commodities which are scarce are included in wealth. Non-material goods such as services, etc. are excluded from category of wealth. मुआशियात दौलत का इल्म है. एडम स्मिथ ने तारीफ बयान की है. इट डील्स विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. सिर्फ वो चीज़ें जो कामयाब हैं, एडम स्मिथ ने उनको दौलत में शुमार किया है. नॉन मटेरियल गुड्स जैसे सर्विसेज, डॉक्टर्स की खदमात, टीचर्स की खदमात, लॉयर्स की खदमात को उन्होंने दौलत में शुमार नहीं किया गया है. जबकि दौर जदीद की मुआशियातदानों ने वेल्थ की तारीफ में मादी और गैर मादी दोनों चीज़ों को दौलत में शुमार किया है. ड्रॉबैक्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन. एडम स्मिथ की डेफिनेशन को तनकीदी निगाह से भी देखा गया है. While acclaimed by many, the theory and classical definition of economics by Adam Smith was and is still disapproved and criticized by economists around the world. एडम स्मिथ की तारीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया गया है. Too much importance to wealth. Definition of economics by Adam Smith gives primary importance to wealth and secondary to human being. This emphasis has now shifted from wealth to human being. Man occupies primary place and wealth a secondary one. The real fact is that man is more important than study of wealth. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में दौलत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है. एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन बयान की है, उसमें बुनियादी अहमियत दौलत को दी गई है और सानवी अहमियत इंसान को दी गई है. जबकि हकीकत यह है कि इंसान दौलत के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखता है. नंबर 2, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ. इन द डेफिनेशन, द वर्ड वेल्थ मीन्स ओनली मटेरियल गुड्स such as vehicles, industries, raw materials, bank, etc. It does not include immaterial goods like services of doctors, lawyers and teachers.
In modern economics definition, the word wealth includes both material and immaterial goods. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में दौलत के लफ्ज़ को महदूद कर दिया गया है। एडम स्मिथ में जो दौलत की डेफिनेशन को बयान की गई वो मादी चीज़ों तक महदूद है। गैर मादी चीज़ें जैसे सर्विसेज, खिदमत वगैरह, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, उन सब की खिदमत को दौलत में शामिल नहीं किया गया। जबकि दौर जदीद की डेफिनेशन में वेल्थ में दोनों को शामिल किया गया, मादी और गैर मादी दोनों चीज़ों को वेल्थ में शामिल किया गया है। Concept of economic wealth. According to this, main objective of human activities is only to earn more and more wealth. In other words, he earns only for his self-interest and social interest is completely ignored. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में इंसान का मकसद सिर्फ दौलत कमाना ही नहीं है, जबकि दौलत बज़ाहिर खुद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि दौलत इसलिए अहम है कि उससे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की जाती हैं। और एडम स्मिथ की डेफिनेशन में सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत दी गई है और सोशल इंटरेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। मैन वेलफेयर इज मिसिंग। द अदर ऑब्जेक्शन बाय मार्शल इज दैट मैन वेलफेयर हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन एडम्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ही हैज स्ट्रेस्ड मच ऑन वेल्थ। Wealth is a means to an end, the end being the human welfare. एडम स्मिथ की डेफिनेशन में इंसान के वेलफेयर को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि दौलत पर जोर दिया गया है, जबकि दौलत खुद एक जरिया है मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करने का। It does not study means. The definition lays emphasis on the earning of wealth as an end itself. It ignores the means for the earning of wealth. इस डेफिनेशन में दौलत हासिल करने पर जोर दिया गया है, जबकि दौलत इसलिए हासिल की जाती है कि इससे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की जाती हैं। नैरो एंड कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू। सिंस द वर्ड वेल्थ डिड नॉट हैव अ क्लियर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, देयरफॉर द डेफिनेशन बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। एल्फ्रेड मार्शल, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, gave his own definition of economics and therein he laid emphasis on man and his welfare. एडम स्मिथ ने लफ्ज़ दौलत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिस वजह से उनकी जो डेफिनेशन है वो कंट्रोवर्शियल बन गई है। जबकि बाद के आने वाले मुशनदान एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन बयान की गई, जिसमें उन्होंने मैन और उसकी वेलफेयर पर जोर दिया है।